Hello students, today we continue that chapter, the internet. URL means uniform resource locator. Every sources on the internet like web page, website, document, program, etc. has a unique address which is used to locate them on the internet. This address is known as URL of that resource. This address or URL is entered in the address bar of the web browser, which interrupt to locate the exact server on which the request resources is stored. तो URL क्या होता है स्टूडेंट? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है. जो भी वेबसाइट है, वेब पेज है, कोई भी प्रोग्राम है, तो सबका अपना एक यूनिक एड्रेस होता है जो कि सर्वर पर स्टोर होता है. Typically, a URL has three type of server or protocol: address of the web server and the location या path of the resources where it is stored on the web server. Structure of the URL के पहले क्या होता है? प्रोटोकॉल होता है, फिर स्लैश, फिर एड्रेस और फिर पाथ. एग्जाम्पल क्या देंगे हम? जैसे http://www.grambooks.com about us या www.yahoo.com, www.rediff.com, gmail.com. तो आप कुछ भी यहाँ पे ले सकते हैं. www.grambbook.com is the identifier the server. About is the location of the resources on the web server. तो ये कंप्लीट क्या है? http से लेके .com तक या उससे आगे भी क्या है? पूरा कंप्लीट URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर. वेब एड्रेस क्या होता है स्टूडेंट? इट इज़ अ यूनिक नेम that is used to identify a website on the web server. These are also known as domain name. The web address is a combination of two or more part domain name and domain extension. For example, in the web address grambbook.com is the Grambbook is domain name, where is the which is the user choose as per its choice, whereas the second part com is the domain extension which is predefined and it is used to recognize the domain type. There are many different domain extension to choose from, like .com domain extension है student. .com commercial होता है, org for organization, .net for network जो रिसोर्सेज होते हैं उनके लिए होता है, और .edu for educational, मिल फॉर मिलिट्री और .gov फॉर गवर्नमेंट. तो वेब एड्रेस डोमेन नेम और डोमेन एक्सटेंशन से मिलके बनता है. डोमेन एक्सटेंशंस और कंट्री के डोमेन एक्सटेंशन AE अरब, AU ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, CN चाइना, IN इंडिया के लिए होता है, PK पाकिस्तान. तो इस तरह से ये कंट्रीज़ के डोमेन एक्सटेंशन है. नेक्स्ट है स्टूडेंट IP एड्रेस. द डोमेन नेम सिस्टम इज़ कैरेक्टर बेस्ड नेमिंग सिस्टम विच इज़ ईजी टू रिमेंबर फॉर द यूज़र, बट when these domain name are used as URL to open a specific website in the web browser, there are translate into their corresponding IP address. These unique IP address consist of 4 set number from 0 to 255 and are separated by 3 dot or period. For example, IP address of website www.grambbook.com is 203.122.5559. तो इसका जो है स्टूडेंट इस तरह से भी हम एड्रेस दे सकते हैं. और ये IP एड्रेस जो एक यूनिक एड्रेस होता है जो न्यूमेरिक वे में दिया जाता है. दिस 4 सेट नंबर ऑफ इज़ नोन एज ऑक्टल नंबर. तो देखिए स्टूडेंट, ये इसका एग्जांपल है IP एड्रेस का. तो IP एड्रेस यूनिक एड्रेस होते हैं. हमने तो इसको लेटर में दे दिया www.grambbook.com, बट इसका सर्वर में एक यूनिक IP एड्रेस है. द DNS सर्विस एक्ट लाइक एज ए डिक्शनरी ऑन द इंटरनेट विच ट्रांसलेट अ ह्यूमन रीडेबल डोमेन नेम इनटू corresponding IP address made
up of number to locate the specific resources on the internet. This IP addressing system is also known as numeric addressing system. Next is student, hypertext markup language. Hypertext markup language is official markup language of www. It used to create internet web page. The software that display these web page on the client machine is called web browser. These web pages are created using different predefined HTML टैग. तो HTML क्या है स्टूडेंट? एक लैंग्वेज है जिसमें हम वेब पेज क्रिएट करते हैं. आपने किए हैं वेब पेज क्रिएट, ठीक है, तो ये HTML, और जिसमें हम हाइपरलिंक्स भी क्रिएट कर सकते हैं. नेक्स्ट है ईमेल एड्रेस. टू यूज़ ईमेल फैसिलिटी अ यूज़र रिक्वायर्ड टू रजिस्टर इट्स identity on email server. A registered user get a unique email address which is used for sending or receiving mail on the internet. This address is a combination of a name of the user and the server or host on which the user has an account. These two in the email address are joined by @ सिंबल या साइन बोलेंगे इसको. टिपली इट्स लुक लाइक यूज़र नेम @होस्ट नेम. तो स्टूडेंट्स, कोई भी ईमेल आईडी हमें क्रिएट करनी है तो उसमें हमें अपना यूज़र नेम देना होगा, आइडेंटिटी देनी होगी जो कि सेपरेट होगी @ से, और gmail.com जिस सर्वर पर हम आईडी क्रिएट करना चाहते हैं gmail.com. तो ये भी एक यूनिक क्रिएट होती है सबके लिए, ताकि हम जो मैसेज हैं, जो ईमेल मैसेजेस हैं, उनको अच्छे से रिसीव कर सकें, सेंड कर सकें. नेक्स्ट है डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग. डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग आप सभी को पता ही होगा ऑलरेडी. सर्वर से हम कोई भी डाटा अपने पीसी पर लेकर आते हैं तो होती है डाउनलोडिंग. और अपलोडिंग, हमने कुछ भी हमारा जो हमारे पास जो डाटा है हमारे लैपटॉप में या हमारे स्मार्टफोन में, वो हमने इंटरनेट पर अपलोड किया तो वो होती है, इंटरनेट पर डाला तो वो होती है अपलोडिंग. फॉर एग्ज़ाम्पल, आप FB यूज़ करते हो, ठीक है, इंस्टा यूज़ करते हो, तो आप अपनी जो इमेजेस हैं, अपनी फ़ोटोज़ हैं, अपनी पिक हैं, वो अपलोड करते हो. तो डाउनलोड इज़ अ प्रोसेस ऑफ कॉपिंग द फाइल फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर अक्रॉस द इंटरनेट. फॉर एग्जांपल, व्हेन यू डाउनलोड अ फ्री एंटीवायरस प्रोग्राम फ्रॉम अ वेबसाइट, इट मीन्स यू आर कॉपिंग इट फ्रॉम द वेब सर्वर टू योर कंप्यूटर. तो सर्वर से अपने कंप्यूटर पे लेके आना क्या होता है? डाउनलोडिंग. हम कोई भी लैंग्वेज, कोई भी सॉफ्टवेयर, कुछ भी हम एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हम डाउनलोड कर सकते हैं. कोई भी गेम अपने पीसी पर लेके आना, तो ये होती है डाउनलोडिंग. अपलोडिंग, हम यहाँ से डाटा को नेट पर सेव करते हैं या नेट पर अपलोड करते हैं, तो होती है अपलोडिंग. जैसे हमने अपनी जो पिक्स हैं वो गूगल ड्राइव में सेव कर दी, तो वो भी एक तरह की क्या है? अपलोडिंग. इंटरनेट प्रोटोकॉल्स. तो कंप्यूटर मेनली प्रोटोकॉल्स के ज़रिए वर्क करता है. मोस्ट ऑफ द वर्क ऑन द इंटरनेट इज़ डन बाय द ट्रांसफ़र डाटा एंड इंफॉर्मेशन बिटवीन द लार्ज नंबर और computer connected to each other. In most of cases, the communication take place between various client and servers, and the computer connected to the internet may have different hardware configuration, run on different operating system, or use different software. It is important to set some standard rules so that communication between them it is not affected and the data transfer take place smoothly. तो काफ़ी सारे जो सिस्टम्स होते हैं जो इंटरनेट पर कनेक्ट होते हैं, वो अलग अलग टाइप्स के होते हैं, अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन के होते हैं, अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के होते हैं. तो उन सभी में जो एक रूल वर्क करते हैं, उन सभी में डाटा को मूव करने के लिए, डाटा को यहाँ से वहाँ पहुँचाने के लिए जो रूल वर्क करते हैं, उन्हें कहते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल. तो सबसे पहले जो मेन प्रोटोकॉल है वो है TCP एंड IP. TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल
प्रोटोकॉल है और आईपी मेन इंटरनेट प्रोटोकॉल है। इंटरनेट यूजेस पैकेट स्विचिंग एज द मोड ऑफ ट्रांसफर डाटा। इन पैकेट स्विचिंग द होल डाटा टू बी ट्रांसफर is broken down into small packets. These packets are transferred from the sending computer to receive computer through the internet. The packet, once they reach the receiver computer, are assembled back to get the data. The TCP/IP set of protocol used to send and receive data packets over the internet. This protocol is made up of two parts, TCP and IP. तो फर्स्ट टीसीपी क्या करता है, डाटा को स्मॉल पार्ट में ब्रेक करता है और उनको एक यूनिक नेम प्रोवाइड करता है और उनका सीक्वेंस प्रोवाइड करता है, फिर उनको डेस्टिनेशन पे सेंड करता है। उसके बाद है नेक्स्ट है इंटरनेट प्रोटोकॉल, जिसे इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एड्रेसिंग एंड रूटिंग द डाटा पैकेट्स। तो सबसे पहले टीसीपी ने पैकेट्स में डिवाइड